Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English course के इस पर्टिकुलर पैरामीटर में जहाँ पे हम रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 4 which is the Cheshire Cat. It's a different kind of cat because you can see here, right? Does a cat smile like this? No, it doesn't. So why is the cat smiling like this? We will get to know about it. So we are going to start with this chapter. अब ये जो chapter है यहाँ पे story reading नहीं चल रही है. Here you are practicing your communication skills, which means आप मेरे साथ read करोगे. कोई भी difficult word जो आपके लिए नया है उसको आप मेरे बाद repeat करोगे. जितना भी मैं आपको knowledge provide कर रही हूँ, जैसे कि grammar के कॉन्सेप्ट्स हुए या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स हैं या किसी भी चीज़ को किस तरीके से कहा जाता है, ये सब आपको नोट डाउन करना है. एंड इफ़ यू हैव बॉट दिस कोर्स ऑलरेडी, सो यू विल ऑल्सो गेट अ PDF ऑफ ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द फ्रेजेस विद मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस. सो नाउ इट इज़ ऑन यू. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश इज़ लाइक इंग्लिश बोलना इज़ नॉट टफ, लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज है, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Now that we know that, we are going to start with chapter 4. Okay, before I do that, let's have a quick recap. क्या हुआ था chapter 3 में? So, Alice जो थी वो परेशान हो गई थी because there was no help. She was only 8 centimeters. Then what happened? She found a huge mushroom, and on that mushroom sitting was who? A caterpillar. And what was the caterpillar doing? The caterpillar was smoking a pipe, and then she asked for help, and the caterpillar asked her to eat the side of mushroom. So she took, since the mushroom was round, she took like 2 parts, okay, one from each side, and she ate. So first she became really tall, then she ate the another side, and then she became small. So she kept on doing this till she was 25 centimeters. Now, when she was 25 centimeters tall, she was happy. Now, she wanted to go to that garden. So, she started walking through the wood. And उसे वहाँ पे क्या दिखा? She found a house. What did she find? She found a house. Now, we are going to see what happens next. आगे क्या होता है? Okay, so there was a boy outside the door. There was a boy मतलब वहाँ, there मतलब वहाँ एक लड़का था. वहाँ एक लड़का था. कहाँ था? Outside the door. दरवाजे के बाहर. Outside मतलब बाहर. With a large letter in his hand. उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा लेटर था. He was dressed like a boy, but his face was very like a fish, Alice thought. अब वो पूरा उसने dressed like a boy का मतलब क्या होता है? उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे? एक लड़के की तरह. Like I am right now dressed like a teacher of Magnet Brains. Sometimes अगर आप fancy dress में compete करते हो तो like you can dress like a fairy, you can dress like a soldier, you can dress up like a vegetable, right? So उसको बोलते हैं. तो जैसे अगर आपने fancy dress में let's say आप बने हो शक्तिमान. So what would you say? I am dressed like Shaktiman. Okay, this is how we say. But his face was very like a fish. But लेकिन his face, उसका जो face था वो कैसा था? Like a fish. एक मछली की तरह था. एलिस ने सोचा. The fish boy knocked at the door. अब इसको हम fish boy क्यों बोल रहे हैं? Because उसका जो face था वो fish की तरह था. Knocked at the door का मतलब होता है डोर पे knock करना, खटखटाना. And a second later, और एक सेकंड बाद क्या हुआ? A large plate came flying out of an open window. एक बहुत बड़ी सी प्लेट एक विंडो जो ओपन थी उस हाउस की वहाँ से उड़ते हुए आई. A large plate came flying मतलब उड़ते हुए आई out of an open window. एक खिड़की जो खुली हुई थी, विंडो का मतलब खिड़की, तो एक खिड़की जो खुली हुई थी वहाँ से एक बड़ी सी प्लेट उड़ते हुए आई. Then what happened? A letter for the Duchess, the fish boy shouted.
सो फिश बॉय ने शाउट किया, मतलब चिल्लाया जोर से। उसने क्या कहा? अ लेटर फॉर द डचेस, डचेस के लिए एक लेटर है मतलब खत है। He pushed the letter under the door and went away. So उसने वो लेटर लिया, उस डोर के नीचे पुश किया and went away. Went away मतलब चला गया। Alice went up to the door and knocked. Alice जो थी वो उस घर के दरवाजे तक गई। अब ये देखो, up to the door, went up का मतलब होता है जाना, कहाँ तक गई? To the door. So I went up to the door मतलब मैं दरवाजे तक गया and knocked, और उसने वहाँ पे खटखटाया। But there was a lot of noise inside and nobody answered. But there was a lot of noise inside, लेकिन अंदर बहुत शोर था। Noise का मतलब होता है शोर, inside मतलब अंदर। There was a lot of मतलब बहुत सारा शोर था अंदर, and nobody answered. तो जब उसने नॉक किया, nobody answered का मतलब होता है किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैं उसके घर गई थी, मैंने नॉक किया बट nobody answered, इसका मतलब होता है किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। So she opened the door and walked in. तो अब लेकिन जैसे उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने दरवाज़ा पूरा धक्का दिया तो वो खुल गया, and she walked in, वो अंदर चलते हुए गई। Okay, walked in. So, a letter for the Duchess, the fish boy shouted. Remember? Okay. She found herself in a kitchen which was full of smoke. तो उसको कहाँ मिली वो उसको एक किचन में गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक था, बहुत ज़्यादा धुआं था वहाँ पे। There was a very angry cook by the fire. अब जहाँ आग जल रही थी वहाँ पे एक बहुत ही गुस्से में एक कुक था। कुक मतलब होता है बावर्ची, जो खाना बनाता है। तो देखा उसने जहाँ आग जल रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में एक कुक खड़ा था। एंड इन द मिडल ऑफ द रूम सैट द डचेस, और रूम के बीच में डचेस मतलब इट्स लाइक क्वीन, ओके, इंग्लैंड की क्वीन। सो वहाँ पे सो ड्यूक एंड डचेस, तो इट्स लाइक नॉट द एग्जैक्ट क्वीन, लेकिन उससे नीचे वाला जो एक लेवल होता है। सो जो डचेस थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी, होल्डिंग अ स्क्रीमिंग बेबी, और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। छोटा सा बच्चा, स्क्रीमिंग मतलब वो चीख रहा था। एवरी फ्यू मिनट्स अ प्लेट क्रैश टू द फ्लोर, हर थोड़ी देर बाद एक जो प्लेट थी वो आके धड़ाम से फ्लोर पे क्रैश हो जाती थी, मतलब टूट जाती थी। There was also a large cat, एक बहुत बड़ी सी कैट भी थी, which was sitting on a chair, और वो एक चेयर पे बैठी थी, and grinning from ear to ear, और grinning from ear to, grinning का मतलब होता है स्माइल करना, एकदम बहुत बड़ी स्माइल करना। ईयर टू ईयर का मतलब होता है इतनी बड़ी स्माइल, जैसे अगर आप बहुत बड़ी स्माइल करते हो ना तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी स्माइल हो गई, राइट? जब हम ऐसे करते हैं तो इसको ईयर टू ईयर स्माइल कहते हैं। जैसे कि मान लो आपकी फ्रेंड बहुत हैप्पी थी, जैसे आपने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया, तो शी वॉज स्माइलिंग ईयर टू ईयर, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ओके, प्लीज, Alice said politely to the Duchess, why does your cat grin like that? अब एलिस ने पूछा डचेस से, why does your cat grin like that? आपकी कैट ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? It's a Cheshire cat. That's why. तो डचेस ने कहा ये एक चेशर कैट है, इसलिए। I did not know that cats could grin, said Alice. एलिस ने कहा I did not know, मुझे नहीं पता था that cats could grin, कि जो कैट्स हैं वो हंस सकती हैं। Well, you don't know much. Well, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। You don't know much. Much मतलब ज़्यादा, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, said the Duchess. Another plate crashed to the floor and Alice jumped. तभी एक और प्लेट आई उड़ती हुई और वो धड़ाम से क्रैश हो गई और एकदम एलिस घबरा गई। जम्प्ड मतलब कि जैसे आपके पास जोर से कोई चीज़ क्रैश होगी तो आप अचानक से क्या होता है, यू जंप। Here the Duchess went on. यहाँ डचेस ने क्या बोला, यू कैन होल्ड द बेबी फॉर द बिट। उसने बोला एक मिनट ये बेबी को पकड़ो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम इस बच्चे को थोड़ी देर पकड़ सकती हो। द क्वीन हैज़ इन्वाइटेड मी टू प्ले क्रॉकेट एंड आई मस्ट गो एंड गेट रेडी। सो इट्स लाइक अ गेम, ओके। सो क्वीन ने मुझे इन्वाइट किया है, मुझे तैयार होने जाना है।
She pushed the baby into Alice's arms and hurried out of the room. तो उसने बच्चे को एलिस की गोदी में दिया, उसके हाथों में दिया और वो वहां से चली गई. There was a large cat which was grinning from ear to ear, and now, oh the poor little thing, Alice ने कहा, oh बेचारी छोटी सी बच्ची. Looking at the baby, उसने बेबी को देख के बोला, oh बेचारी छोटी सी बेबी. Which had a very strange face. अब ये बेबी का जो फेस था वो बहुत अजीब था. She took it outside into the wood and walked around under the trees. वो उसको बाहर फॉरेस्ट में लेके गई and walked around, और पेड़ों के चारों तरफ घूम रही थी, पेड़ों के नीचे. मतलब अगर जैसे ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, तो एलिस उस बच्ची को लेके इस तरीके से इसके पेड़ के अराउंड घूम रही थी पूरे फॉरेस्ट में. ओके. Then the baby began to make strange noises. अचानक से वो जो बेबी थी, it began मतलब उसने क्या चालू किया, to make strange noises, वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी. And Alice looked into its face again, और एलिस ने वापस उसका चेहरा देखा. Its eyes were really very small for a baby. एक छोटे से बच्चे की आंखें जैसी होती है उसकी नहीं थी, उसकी बहुत 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 छोटी थी. And its nose now looked very like the nose of a pig. और उसकी नाक कैसे लग रही थी, like the nose of a pig, एक सुअर की नाक जैसी लग रही थी. Don't make noises like that, my dear, said Alice. अब एलिस ने क्या कहा उस बेबी से, ऐसी आवाज़ें मत निकालो मेरी बच्ची. It's not polite, ये अच्छी बात नहीं है. You are beginning to sound like a pig. तुम एक सुअर की जैसी आवाज़ निकाल रही हो. But a few minutes later, there was no mistake. लेकिन थोड़े ही मिनट्स के बाद उसे लगा ये तो कोई गलत हो ही नहीं सकता. It was a pig. वो बच्चा नहीं था छोटा सा, वो तो एक सुअर था. Alice put it carefully on the ground. Alice ने उसको ग्राउंड पे रखा and it ran quietly away on its four legs into the wood. उसने जैसे ही उसे ग्राउंड पे रखा तो वो अपने 4 पैरों पे फॉरेस्ट में चला गया. आई एम प्लीज्ड अबाउट दैट. एलिस ने जैसे ये देखा वो बहुत खुश हो गई. प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना. ओके, अच्छा फील करना. एलिस सेड टू हरसेल्फ, एलिस ने खुद से कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ. इट विल बी अ गुड लुकिंग पिग, बट इट वुड बी टेरिबल टू बी अ चाइल्ड विद अ फेस लाइक दैट. ये तो अच्छा है कि भाई वो पिग बड़ा सुंदर था, लेकिन एक बच्चा जिसका चेहरा पिग जैसा दिखता है, ये कितनी गलत बात हो जाती. She was thinking about pigs. अब वो उस वक्त पिग्स के बारे में सोच रही थी. And children, और बच्चों के बारे में सोच रही थी. When she suddenly saw the Cheshire cat in a tree. तभी उसने क्या देखा, एक ट्री में वो कैट बैठी हुई थी. The cat grinned at her. उस कैट ने उसको देख के मुस्कुराया. And she went nearer to it. और वो उसके पास गई. Please, she said, Can you tell me which way to go from here? तो उसने जाके पूछा, एलिस ने उस कैट से, प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से किस तरफ जाएं? Can you tell me मतलब क्या आप मुझे बता सकते हो which way to go from here, यहाँ से कौन सी तरफ जाना है? But where do you want to get to? said the cat. कैट ने पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? Where do you want to get to? तुम्हें जाना कहाँ है? It doesn't really matter. मतलब उसने बोला एक्चुअली इतनी कोई बात नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है ये जानने का कि मुझे कहाँ जाना है. Then it doesn't matter which way you go. उसने जब बोला कि नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उसने बोला तो फिर कहीं पे भी चले जाओ. But I would like to get somewhere. तो उसने बोला लेकिन मुझे कहीं पहुँचना है. एलिस ने एक्सप्लेन किया. If you just go on walking, said the cat, in the end you will arrive somewhere. उसने बोला अगर तुम चलती जाओगी. इफ़ यू गो ऑन वॉकिंग का मतलब होता है चलते जाना. तो अगर तुम चलती जाओगी तुम कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली पहुंच जाओगी. दैट वॉज ट्रू, थॉट एलिस. उसने बोला यार ये तो सही है, बट नॉट वेरी हेल्पफुल. लेकिन इस कैट ने तो हेल्प नहीं करी. सो शी ट्राइड अनदर क्वेश्चन. तो उसने एक और क्वेश्चन पूछा. व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव नियर हियर? यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं? काइंड ऑफ पीपल मतलब किस तरीके के लोग. विच काइंड ऑफ पीपल मतलब अब इसने क्या बोला है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल मतलब यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं यहाँ आसपास में.
तो कैट ने क्या बोला, देखते हैं। टू द लेफ्ट द कैट सेड लिव्स अ हैटर एंड टू द राइट लिव्स अ मार्च हेयर, यू कैन विजिट ईदर ऑफ देम, दे आर बोथ मैड। तो उसने बोला लेफ्ट साइड में एक हैटर रहता है और राइट साइड में एक मैड हेयर, मतलब एक मार्च हेयर रहता है। ओके, तो एक साइड एक हैटर है और एक साइड एक मार्च हेयर है। तुम कहीं पे भी जा सकती हो, दे आर बोथ मैड, मतलब दोनों ही पागल हैं। बट आई डोंट वॉन्ट टू विजिट मैड पीपल, एलिस ने बोला मुझे पागल लोगों से मिलना क्यों होगा, मुझे नहीं मिलना। वी आर ऑल मैड हियर यू नो, उसने बोला यहाँ तो हम सब पागल हैं। आई एम मैड, यू आर मैड, मैं पागल, तुम पागल। हाउ डू यू नो दैट आई एम मैड, सेड एलिस। एलिस ने कहा तुम्हें कैसे पता मैं पागल हूँ। Of course you are mad, only mad people come here, उसने बोला of course तुम पागल हो क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पागल लोग आते हैं। Alice was thinking about this, but the cat went on. Alice सोचने लग गई। फिर कैट ने क्या कहा, Are you playing croquet with the queen today? तुम क्या आज क्वीन के साथ क्रिकेट खेलने वाली हो? I would like to very much, बट nobody has invited me yet. उसने बोला हाँ, मतलब मुझे तो मज़ा आएगा लेकिन मुझे अभी तक किसी ने इनवाइट नहीं किया है। येट का मतलब होता है अभी तक, जैसे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। I have not eaten lunch yet. Okay? You will see me there, said the cat and vanished. तो कैट ने बोला चलो वहाँ मिलते हैं, और कैट गायब हो गई। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। Alice was not really surprised at this. अब सुबह से एलिस के साथ इतनी सारी सरप्राइजिंग थिंग्स हो गई थी कि जैसे ही वो कैट वैनिश हो गई, एलिस को कुछ सरप्राइज नहीं लगा। बिकॉज सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स वर हैपनिंग टुडे, क्योंकि आज सो मेनी, इतनी सारी स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीज़ें हो रही थी। She was still looking at the tree when suddenly the cat appeared again. तो वो अभी भी एकदम ऐसे आंखें खोल के ट्री को देख रही थी जहाँ कैट बैठी थी, और अचानक से कैट वापस आ गई। ओके, appeared again, appear होने का मतलब होता है प्रकट होना। I forgot to ask. Excuse me. Sorry guys, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, so please bear with that. Okay, I forgot to ask. What happened to the baby? कैट ने पूछा एक बात बताओ, उस बच्चे का क्या हुआ? What happened मतलब क्या हुआ? To the baby मतलब उस बच्चे का। It turned into a pig. वो तो एक सुअर में बदल गया। I am not surprised, said the cat and vanished again. उसने बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो वापस गायब हो गई। Alice began to walk on and decided to visit the March Hare. तो एलिस ने सोचा यहाँ पे हैटर रहता है, यहाँ पे मार्च हेयर रहता है, तो उसने सोचा चलो मार्च हेयर की तरफ चलते हैं। इट्स द मंथ ऑफ मे नाउ, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने कहा खुद से कि अब तो ये मई का मंथ चल रहा है। सो परहैप्स द हेयर वोंट बी एज मैड एज ही वॉज इन मार्च। अब उसको क्या बोलते हैं, मार्च हेयर। तो उसने सोचा मार्च में तो वो पागल था, लेकिन अब तो मई आ गया है, हो सकता है अब इतना पागल ना हो। Suddenly there was the Cheshire cat again. तभी वहाँ पे वो Cheshire cat फिर से आ गई। Sitting in another tree. अब वो दूसरी ट्री पे बैठी थी। Alice jumped in surprise. वो अचानक से सरप्राइज हो गई। Do you think, she said politely, that you could come and go more slowly? उसने पूछा तुम्हें, मतलब उसने उस कैट से बहुत ही पोलाइटली पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा स्लोली एकदम से आ सकते हो या एकदम से जा सकते हो, एकदम से तुम वैनिश हो जाती हो, तो यू नो इट इज लिटिल शॉकिंग। ऑल राइट, सेड द कैट एंड दिस टाइम इट वैनिश्ड वेरी स्लोली। तो उसने बोला ठीक है, और इस वक्त वो बहुत धीरे धीरे गायब हुई। फर्स्ट इट्स टेल वेंट, पहले उसकी टेल गायब हो गई, उसके बाद उसकी बॉडी गायब हो गई, देन इट्स हेड, फिर उसका सर गायब हुआ, एंड लास्ट द ग्रिन। ओ माई गॉड, नो इमेजिन देयर इज अ कैट। पहले टेल चली गई, फिर पूरी बॉडी चली गई, मतलब सिर्फ फेस दिख रहा है, उसके बाद उसका हेड भी चला गया, और लास्ट में उसकी स्माइल गई। वेल, आई हैव ऑफन सीन अ कैट विदाउट अ ग्रिन, थॉट एलिस, बट नेवर अ ग्रिन विदाउट अ कैट। कैट ने, उसने, एलिस ने मन में सोचा मैंने कभी कभी एक कैट को मुस्कुराते हुए देखा है, मतलब उसकी स्माइल तो देखी है, लेकिन एक स्माइल विदाउट अ कैट कभी नहीं देखी।
Soon she saw the house of the March Hare in front of her. तभी उसने देखा in front of her मतलब उसके सामने March Hare का house था. It was a large house. वो एक बहुत बड़ा घर था. So she ate a little piece of mushroom. तो उसने मशरूम का छोटा सा पीस खाया to get bigger. थोड़ी ताकि वो बड़ी हो जाए. And walked on. फिर वो walk करने लगी. This time the cat vanished very slowly. Okay. And now what is going to happen next at Marge Hare's place that we are going to know in our next video. मज़ा आया? वैसे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको एक चीज़ नोटिस करनी कि आप कितने सारे प्रिपोजिशन सीख रहे हो. यू नो कि कहाँ कैसे कब कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करना है, वो इसमें इतने प्रिपोजिशंस हैं कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो जब आप ग्रामर वाला सेक्शन देखोगे प्रिपोजिशन का और उसके बाद जब आप इस चैप्टर को वापस पढ़ोगे तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस इंटायर चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, तो you can always connect with us either through mail or Instagram or YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, anything. So we have our number also here. You can always share कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश सेशन चल रहा है वो कैसा लगा. चलिए, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.